پوچھنے والے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ کون ہے؟ میں نے کہا یوں نہیں بتاؤں گا، ہاتھ اٹھاؤ، مکتا بناؤ، جواب تو کون ہے؟ جواب آتا ہے حضور کی زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ کرے۔ پھر ساتھ رہنے والوں نے کمال یہ کیا کہ زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ کیا، اور اس طرح محفوظ کیا کہ کوئی ایک چیز بھی رہنے نہیں دی جو آنے والی نسلوں تک پہنچ نہ سکے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر یہ پوچھنا چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کتنی بڑی تھی تو حضرات صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ زلف اتنی بڑی تھی۔ صرف یہی نہیں بتاتے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کنگھا کیا تو اتنی بڑی تھی، غسل کیا تو اتنی بڑی تھی، غسل کے بعد کنگھا کرنے کے بعد جب وہ لپٹتی چلی گئی تو پھر اتنی لمبی تھی، وہ کانوں کے پاس تھی، وہ کندھے کے پاس تھی۔ کنگھی کے بعد کیسی تھی، کنگھے سے پہلا کیسی تھی، تیر لگانے کے بعد کیسی تھی، درمیان میں مانگ نکالا تو مانگ کیسی تھی، آنکھ پہ سرما کیسے لگایا، دائیں ہاتھ میں کتنا لگایا، بائیں آنکھ میں کتنا لگایا، سرما لگانے کے بعد اس آنکھ کی کیفیت کیا تھی، جب آپ باہر کو نکلے تو پہلے قدم کیسے نکالا، باہر کیسے نکلے، جب مسجد میں گئے تو پہلا قدم اندر کون سا رکھا، وہ کون سا تھا، جب مسجد سے باہر آئے تو کس انداز میں آئے، جب بیت الخلا میں گئے تو کس طریقے سے گئے، جب بیت الخلا سے واپس آئے تو کس طریقے سے آئے، آپ نے پانی استعمال کیسے کیا، اور آپ نے غسل کیسے کیا، اور آپ نے تیمم کیسے کیا، اور آپ نے وضو کیسے کیا، وضو میں پھر آپ نے کلی کیسی کی، اپنے دندان مبارک پہ کون سی انگلی کا استعمال کیا، مسواک ہاتھ میں پکڑا تو کس سٹائل میں پکڑا اور کس انداز میں پکڑا، مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، حضور نے مسواک کیا کیسا ہے، پھر مسواک کو رکھا کیسے ہے، باہر کیسے نکلے ہیں، ہجوم سے کیسے ملے ہیں، وفود سے کیسے ملے ہیں، رشتہ کیسے ہوا ہے، شادی کیسے ہوئی ہے، نکاح کیسے ہوا ہے، آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے، اور آپ نے پانی کیسے پیا ہے، معاملات کیسے ہیں، دن رات کیسے ہیں، صبح شام کیسے ہیں، یہاں تک کہ رات جب آپ اپنے بستر پر سوئے ہیں تو بستر کو صاف کیسے کیا ہے، پھر بستر پر پہلا پاؤں کون سا رکھا ہے، پھر آپ لیٹے تو کس طرح سے لیٹے، دایاں ہاتھ کہاں ہے اور بایاں ہاتھ کہاں ہے، اور جب سونے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے، اور جب جاگنے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے، جاگے کیسے ہیں، جاگنے کے بعد کیسے کیا ہے، آپ مصلی پہ کیسے گئے ہیں، مصلی پہ کھڑے کیسے ہوئے ہیں، تکبیر کیسے کی ہے، اور تکبیر کرنے کے بعد آپ نے قرات کیسے شروع کی ہے، کتنی دیر کھڑے رہے، قیام کتنی دیر کا تھا، پھر رکوع کتنی دیر کا تھا، پھر سجدہ کتنی دیر کا تھا، رکوع میں کیا پڑھا ہے اور سجدے میں کیا پڑھا ہے اور قیام میں کیا پڑھا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے آپ مسجد نبوی کی طرف کیسے گئے ہیں، اور مسجد نبوی میں کون سا پاؤں پہلے رکھا ہے، داخل کیسے ہوئے ہیں اور کہاں جا کر بیٹھے ہیں، دروازہ کیسے کھلا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو چہرے کا رنگ کیسا تھا، جب مسجد میں آئے تو کیفیت کیسی تھی، جب وہاں پر آ کر آپ منبر پر چڑھے تو چڑھے کیسے، جب چڑھ رہے تھے تو ہاتھ میں کیا تھا، ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کتنا تھا، یعنی وہ اگر ڈنڈا تھا تو کتنا لمبا تھا، عصا تھا تو کتنا موٹا تھا، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا، دوسری پہ رکھا تو کیا کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا، آمین کیسے کہی، جواب کیسے دیا، پھر منبر پر بیٹھے کیسے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد پھر خطبہ کیسے دیا، جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو لوگ قریب کیسے آئے، اور بعد میں کون آیا اور پہلے کون آیا، وہ دروازے سے کیسے داخل ہوئے، اور پہلی صف میں کون تھا اور دوسری صف میں کون تھا، اور دائیں کون کھڑا تھا اور بائیں کون کھڑا تھا، خطبہ دے کر آپ نیچے اترے تو کیسے اترے، اس خطبے میں کیا کہا، خطبے کا آواز کیا تھا، خطبے کے الفاظ کیا تھے، خطبے کے جملے کیا تھے، وہ بیانیہ کیا تھا، وہ بیان کیا تھا، اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، کون نے آیا تھا، کس نے آج کلمہ پڑھا تھا، کس نے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آج کس کے گھر میں گئے تھے، آج کس کے گھر میں
जाने की बारी थी। आप मदीना से मक्का कैसे आए, आप मक्का में आते हुए लोगों को कैसे लाए, 1400 सहाबाए किराम आपके पास कैसे थे, सुलह हुदैबिया कैसे हुई थी, आपने फिर बैत कैसे की थी, आप अलैहिस्सलाम खेमे में कैसे गए थे, खेमे से बाहर कैसे आए थे, आपके ऊंट कैसे थे, आपकी बकरियां कैसी थी, आपका घोड़ा कैसे था, घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का हसब क्या था, घोड़े का नसब क्या था, घोड़े पर बैठते कैसे थे, लिबास कैसे पहना था, पगड़ी कैसे पहनी थी, और पगड़ी की लंबाई कितनी थी, पगड़ी को बल कितने दिए थे, इसका रंग क्या था, रंग मुख्तलिफ कैसे थे, इस जगह कौन सी पगड़ी बांधी और दूसरी जगह कौन सी बांधी, जब फतेह मक्का हुआ तो पगड़ी का रंग क्या था, और जब मदीना में थे तो पगड़ी का रंग क्या था, बैतुल्लाह में कैसे दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद आपका अंदाज क्या था, ऊंटनी पर बैठे हुए आपका सर झुका हुआ था या सर ऊपर को था, पीछे कौन बैठा था और पीछे चल कौन रहे थे, अबू सुफियान कैसे आया था और अबू सुफियान ने क्या कहा था, उसे पेश कैसे किया था, आप मैदान में निकले थे, आपने तबलीग कैसे की थी और वाज कैसे किया था, आप मक्का की गलियों में घूमे कैसे थे, आप मक्का से ताइफ कैसे गए थे, रास्ते में मुश्किलात कैसे पेश आई थी, आप जो है बाग में कैसे गए थे, आप बाग से कैसे निकले थे, जिब्राइल कैसे आया था, जिब्राइल ने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा था, हुजूर ने माफ कैसे किया था, आप मक्का के पहाड़ों पे कैसे चढ़े थे, अबू जहल के दरवाजे पर कैसे गए थे, आपने पैगाम हक कैसे पहुंचाया था, जब आप पहाड़ पे चढ़ के कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे तो लहजा कैसा था, अंदाज कैसा था, मुखालफत कैसी थी, मुखासमत कैसी थी, झगड़ा कैसे हुआ था, पत्थर किसने मारा था, कितने मारे थे, लगा कहां पर था, जख्म कैसे हुआ था, आप गार में गए थे, गार से वापस आए थे, जिब्राइल ने कलाम दिया था, आप घर में कैसे दाखिल हुए थे, खदीजा ने क्या कहा था, फिर खदीजा लेकर किसके पास गई थी, फिर आपकी दावत पर लब्बैक सबसे पहले किसने कहा था, मर्दों में किसने कहा, आजाद में किसने कहा, औरतों में किसने कहा, बच्चों में किसने कहा, पहले पहल कौन है, साबिकून अल-अव्वलून कौन है, मुहाजिर कौन है, अंसार कौन है, मुहाजिर का किरदार क्या है, अंसार का किरदार क्या है, साथ चलने वाले कौन है, हिजरत कैसे हुई, हिजरत की रात कैसे आई, बिस्तर पर किसको सुलाया, किसको सुलाकर बिस्तर पर से किसको उठाया, किसके घर से निकले और किसके घर में चले गए, दरवाजे पर दस्तक दी, सामने वाले ने खोला कैसे, दस्तक कैसे दी, आगे पेश कैसे किया, दो सवारियां कैसे थी, बाहर कैसे निकले, रोड पर या रास्ते पर चल कैसे पड़े, हिजरत के रास्ते पर कैसे चले, पहाड़ तक कैसे पहुंचे, हिरा तक सोर तक कैसे पहुंचे, उस रास्ते को इख्तियार कैसे किया, आप बैठे कैसे, फिर आप उठे कैसे, आपको उठाया किसने, उठाकर फिर चलाया किसने, गार साफ किसने की, गार साफ करके आपको अंदर किसने बुलाया, फिर गार में क्या हुआ, फिर अंदर क्या हुआ, फिर लहजा क्या हुआ, फिर लब कैसे हुए, सर कहां लगा, गोद किसकी थी, किसकी गोद में आपको फिर लेटाया गया, कहां से फिर आप उठे, बाहर को फिर आप कैसे निकले, मदीना में आप फिर कैसे पहुंचे, इस्तिकबाल कैसे हुआ, बच्चियां कहां पर आई, बच्चे कहां पर खड़े थे, लोग कहां पर खड़े थे, तराना क्या कहा गया, कुबा को कैसे बनाया गया, तामीर कैसे की गई, जुम्मा मस्जिद में कैसे आए, जुम्मे की अदायगी कैसे की, जनाब मदीना में कैसे पहुंचे, अयूब के घर के सामने ऊंटनी कैसे बैठी, बैठने के बाद वो जगह कैसे खरीदी, जगह खरीदने के लिए पैसे किसने दिए, वो मस्जिद कैसे कायम हुई, उसकी दीवारें कैसे कायम की, उसके पत्थर कैसे लाए, उसका गारा कैसे किया, उसको दीवारों पे कैसे लगाया, वहां नमाज कैसे पढ़ाई, फिर निकले तो बदर में कैसे गए, बदर में क्या किया, अफराद कितने थे, घोड़े कितने थे, तलवारें कितनी थी, नेज़े कितने थे, कदम कैसे उठाते थे, बाहर कैसे जाते थे, काफिला कैसे चला गया, काफिले को कैसे पकड़ लिया, अबू सुफियान का काफिला कैसे निकल आया, अबू जहल कैसे आ गया, मुकाबला कैसे हो गया, ऊंचाई पे कौन था, निचाई पे कौन था, बारिश कैसे हुई थी, मिट्टी किसके पास थी, रेत किसके पास थी, हवा कैसे चली थी, मदद कैसे आई थी, नुसरत कैसे आई थी, जिब्राइल कैसे आए थे, जिब्राइल उतरे कैसे थे, जिब्राइल का लिबास कैसे था, घोड़ा कैसे था, हाथ में तलवार कैसी थी, मिकाइल किस तरह आए थे, लश्कर किस तरह साथ था, साथ किस तरह चले थे, मैदान में फिर किस तरह आए थे, तहक्कुब फिर कैसे किया था, मुकाबला फिर कैसे हुआ था, फतह फिर कैसे हुई थी, कुएं में कैसे फेंका था, हुजूर ने कहा क्या था, कुएं में खड़े कैसे हुए थे, उसको सवाल क्या किया था, उसका जवाब क्या आया था, वहां से वापस कैसे पलटे थे, मदीना में कैसे रहे थे, फिर मक्का में दाखिल कैसे
कैसे हुए थे जनाब, ओहद कैसे हुआ था, ओहद के पहाड़ पे कैसे चढ़े थे, ओहद से नीचे कैसे आए थे, उस गार में कैसे गए थे, पनाह कैसे ली थी, शिकस्त कैसे हुई थी, फतह कैसे हुई थी, फिर शिकस्त कैसे हुई थी, फिर फतह कैसे हुई थी, नीचे कौन उतरे थे, ऊपर कौन गए थे, पलट कर कौन आए थे, हमला किसने किया था, फिर मोमिन कौन हुआ था, फिर मुसलमान कौन हुआ था, फिर दीन की बात आगे कैसे चली, हुजूर ने फजर कैसे पढ़ाई, जोहर कैसे पढ़ाई, असर कैसे पढ़ाई, मगरिब कैसे पढ़ाई, इशा कैसे पढ़ाई, तहज्जुद कैसे पढ़ी, तहज्जुद की कितनी रकातें हैं, अशराक की कितनी रकातें हैं, चाश्त की कितनी रकातें हैं, अवाबीन की कितनी रकातें हैं, इसमें क्या पढ़ते थे, नियत कैसे करते थे, खड़े कैसे होते थे, चेहरा कैसे था, जुल्फ कैसे था, हुसन कैसे था, जलाल कैसे था, जमाल कैसे था, रूप कैसे था, दबदबा कैसे था, भलाई कैसे थी, खूबी कैसी थी, चाल कैसी थी, किरदार कैसा था, गुफ्तार कैसा था, अखलाक कैसे थे, अमाल कैसे थे, तर्ज जिंदगी कैसी थी, माइशत कैसी थी, माशत कैसी थी, बचपन क्या है, लड़कपन क्या है, जवानी क्या है, शबाब क्या है, कमाल क्या है, मुस्कुराहट क्या है, चाहत क्या है, मोहब्बत क्या है, अकीदत क्या है, ससुर कौन है, दामाद कौन है, बीवी कौन है, जोजा कौन है, हरम कौन है, बेटी कौन है, बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, औलाद कितनी है, खानदान कितना है, कुरान कैसे उतरा, जिब्राइल कैसे आया, कौन सी सूरत कहाँ लाया, कौन सी आयत कहाँ से लाया, कौन सा औरत कहाँ से लाया, कहाँ पर नाजिल हुआ, किधर नाजिल हुआ, जिब्राइल बदर में कैसे आए, जिब्राइल ओहद में कैसे आए, जिब्राइल खैबर में कैसे आए, बिस्तर पे कैसे आए, आयशा के घर में कैसे आए, आयशा के बिस्तर पर कैसे आए, वही कैसे उतारी, कुरान कैसे हुआ, हुजूर की कैफियत क्या हुई, तिलावत कैसे हुई, कुरान पढ़ाया कैसे, कुरान बताया कैसे, कुरान पढ़ा कैसे, कुरान लिखाया कैसे, कुरान दिलों में कैसे उतारा, तज़किया कैसे किया, तरबियत कैसे की, पढ़ाया इन्हें कैसे, समझाया इन्हें कैसे, सजाया इन्हें कैसे, इन्हें तैयार कैसे किया, इन्हें मुझे तैयार कैसे किया, इनके दिल को पाक कैसे किया, फिर सब में कैसे खड़ा किया, फिर बुलाया कैसे, फिर वो सफों में खड़े कैसे हुए, वो चपटे कैसे, वो पलटे कैसे, वो आए कैसे, उनने वार कैसे की, उनने तलवार कैसे चलाई, वो दीन के लिए आगे कैसे बढ़ते चले गए, हुजूर की आखिरी उम्र आ गई, मस्जिद नबवी में कैसे हैं, मस्जिद नबवी में क्या कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है, आजान कौन सी दी, आजान कैसी दी, आजान किसने दी, आजान के अल्फाज क्या है, आजान के जुमले क्या है, आजान के बाद मुसल्ला खाली है, अब खड़ा कौन होगा, बताएगा कौन, बताया किसने, बताया किसको, फिर खड़ा कौन हुआ, फिर इमाम कौन बना, फिर इमामत किसे मिली, फिर खिलाफत किसे मिली, पहला खलीफा कौन है, दूसरा खलीफा कौन है, तीसरा खलीफा कौन है, चौथा खलीफा कौन है, जमीन कैसे फिरी, कुस्तुम दुनिया कैसे फतह हुआ, रूम कैसे फतह हुआ, कैसर और किसरा कैसे फतह हुए, कुस्तुम दुनिया के बाजारों तक ये बात कैसे पहुंची, कंधार तक कौन आया, काबुल तक कौन आया, पेशावर तक कौन आया, सक्कर तक कौन आया, रोडी तक कौन आया, कुरान कौन बन गया, कुरान की तस्वीर कौन बन गया, कुरान की सूरत कौन बन गया, कुरान के अल्फाज कौन बन गया, पैगंबर के साथ कौन है, साथी कौन है, लिखने वाले कौन है, बताने वाले कौन है, पढ़ने वाले कौन है, पहुंचाने वाले कौन है, दिन समझने वाले कौन है, लेकर चलने वाले कौन है, दुनिया के कोने कोने तक फिर फैल कर दिन पहुंचाने वाले कौन है, कुरान, सुन्नत, शरीयत, सदाकत, दियानत, अमानत, हर चीज लेकर दुनिया तक पहुंचाने वाले कौन है, लंबी बात करूं सारी जिंदगी लगा रहूं, लम्हा लम्हा गुजरता रहे, मिनट मिनट गुजरता रहे, सेकंड सेकंड गुजर जाए, सदियां गुजर जाए, जमाने गुजर जाए, क़यामत गुजर जाए, मैं बात करता रहूं, बात खत्म न हो, बात खत्म करने लगा हूं, आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे बात खत्म करोगे, मैंने क्या एक जुमला कहूंगा, एक लफ्ज कहूंगा, उसी जुमले और लफ्ज में सारी दीन को, शरीयत को, तौहीद को, सुन्नत को, ईमान को, ईकान को, नबूवत को, खत्म नबूवत को उसके अंदर रख के उसे एक बटन कर दूंगा, जिसका जी चाहे, जो सुनना चाहे उस बटन पर हाथ रखकर उसे दबाता चला जाए, तौहीद यहाँ से मिलेगी, नबूवत यहाँ से मिलेगी, रिसालत यहाँ से मिलेगी, खत्म नबूवत यहाँ से मिलेगी, इकरार यहाँ से मिलेगा, जमीन आसमान की बातें यहाँ से मिलेगी। मुझे पूछने वाले कहते हैं मौलाना साहब वो कौन है, मैंने कहा क्यों नहीं बताऊंगा, हाथ उठाओ, मुक्ता बनाओ, जवाब तो कौन है, जवाब आता है पहले पेरादार, खत्म
नबूवत की बात दुनिया तक पहुंचाने वाले इन शख्सियात के लिए सहाबाए किराम का तारुफ भी कराओ, दुनिया को बताओ। आज खत्म नबूवत की गूंज दुनिया के कोने कोने में अगर फैल रही है, रब्बे जलाल की कसम उनके दम पर कदम फैल रही है। आज मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, जंगलों, वीरानों, देहातों में अगर आजान की सदा सुनाई देती है, खुदा की कसम उनके दम पर कदम सुनाई देती है। आज मराकिज में, मसाजिद में, मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है, खुदा की कसम उनके दम पर कदम पढ़ाया जाता है। ये उन्हीं का दिया हुआ, ये उन्हीं का लिखा हुआ, ये उन्हीं का पहुंचाया हुआ, ये उन्हीं का समझाया हुआ दीन है जो आज इस चौक पे खड़े होके मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं। ये सारी बात हमें जिनके वास्ते से मिली। तुमसे पूछता हूँ वो कौन है? अपनी औलादों को, बताओ अपनी औलादों को हुजूर आखिरी नबी हैं, वही बताओ। आखिरी नबी के पहले लोग दीन बचाने वाले, खाना देने वाले, अज़ाने देने वाले, तलवारें उठाने वाले, घर छोड़ने वाले, मैदानों में आने वाले, बातिल पे छा जाने वाले, ज़मीनें फतह करने वाले, बैतुल्लाह पे अज़ाने देने वाले, दरवाजा खुलाने वाले, बैतुल मक़दस तक आने वाले, दुनिया तक छा जाने वाले, आवाम में फैल जाने वाले कौन थे? वो लोग ईमान लाए जो आप पर उतारा और आपसे पहलों पर उतारा। जो ईमान लाए वो कौन थे? वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जो नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो कौन थे? जो आखिरत पर यकीन रखते थे, वो कौन थे? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कौन थे? सहाबा के तज़किरे करो, इस दरवाजे पर पहरा दो, खत्म नबूवत का मुनकर कहाँ से गुजर के जाएगा? उसका रास्ता यही रोको ताकि कोई ऊपर ना जा सके। मस्जिद के मिंबर और मेहराब को महफूज करना है, दरवाजा महफूज कर लो, अंदर आएगा कोई नहीं, मेहराब को कोई क्या कहेगा। इन अंदर दाखिले वालों का रास्ता रोकेंगे। हम सब हामी नासिर हज़रत अक़दस मौजूद हैं और वो गुफ्तगू भी फरमाएंगे, दुआया कलिमात भी होंगे और दुआ भी फरमाएंगे। जब तक उनकी गुफ्तगू आप ज़रूर सुनात फरमाएंगे।